بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. البرز ٹی وی کے ساتھ قیوم بیدار آپ کی خدمت میں حاضر. ناظرین, آج ہم پھر اسٹوڈنٹ پالیٹکس کے حوالے سے بات کریں گے. آپ نے ہمارے چند پروگرام دیکھے بی ایس او کے حوالے سے. آج ہم یہ پروگرام بی ایس ایف کے حوالے سے کر رہے ہیں, اس لیے کہ بی ایس او کے اکثر لیڈران براوی بولنے والے ہیں, اور اب جو ہم بی ایس ایف کے حوالے سے پروگرام کر رہے ہیں یہ براوی اسٹوڈنٹ فیڈریشن. بی ایس ایف کا مقصد کیا ہے, یہ کیوں بنا؟ آج ہمارے درمیان ڈاکٹر علی احمد شاد صاحب موجود ہیں جو بی ایس ایف کے لیڈر رہے ہیں, کالج پولیٹکس میں اور یونیورسٹی میں بھی بڑے سرگرم رہے. ہمارے پروگرام میں آئے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. بہت بہت شکریہ البرز کا, شکریہ آپ کا, شکریہ. سب سے پہلے تو آپ اپنے بارے میں تھوڑے سے ہمارے ناظرین کو بتائیں, اور اس کے بعد ہم آتے ہیں بی ایس ایف کی طرف کہ اس کا وجود کب ہوا اور اس کا قیام کب عمل میں آیا اور وجوہات کیا تھی. مہربان بیدر صاحب, میرا نام علی احمد اور شاد براوی تخلص کے حوالے سے میں جانا جاتا ہوں, پہچانا جاتا ہوں. اور بنیادی طور پہ میں براوی شاگرد سیاست کا ایک اہم رکن رہا ہوں, اور اس کے علاوہ براوی ادب, شاعری اور تاریخ پر تھوڑا بہت میں نے کام کیا ہے. یہ ہے تھوڑا سا پس منظر. بی ایس ایف کب بنا, وجوہات کیا تھی؟ براوی اسٹوڈنٹس فیڈریشن 8 اپریل 1988 کو مستونگ میں اس کی بنیاد ہم نے ڈالی, اور باقاعدہ ایک سیاسی سوچ اور نقطۂ نظر کے حوالے سے. اس کے ہم اگر پیچھے جائیں گے تو ایک بہت بڑا پس منظر ہے جو ہمیں اس ڈگر پہ لے آیا کہ ہم سمجھتے تھے کہ براوی کا مسئلہ صرف زبانی اور علمی ادبی مسئلہ نہیں ہے, بلکہ براوی کا مسئلہ بیسیکلی سیاسی ہے. تو اس بنیاد پہ ہم نے ضرورت محسوس کی اور براوی اسٹوڈنٹ فیڈریشن کو اور ایک سیاسی ابتدا کے طور پر ہم نے میدان میں سرگرم عمل طور پہ کام کیا گیا ہے. بعض کہتے ہیں کہ یہ بی ایس ایف 73 میں وجود میں آیا, جس میں ڈاکٹر صلاح الدین مینگل اور دوسرے جو طالب علم رہنما تھے اس وقت جنہوں نے گل خان نصیر کے ساتھ ڈائلاگ بھی اگا براوی کے حوالے سے, وہ کیا پس منظر ہے؟ ہاں, اس کا پس منظر تھوڑا سا اس طرح ہے جہاں سے یہ تضاد جو ہے وہ واضح طور پہ نظر آئے گا آپ کو کہ بلوچستان کے پالیٹکس کے حوالے سے اور بلوچستان کی جو سیاسی جو تغیرات ہیں اس کو سمجھنے کے لیے ایک بہت بڑا اہم میں سمجھتا ہوں کہ نقطہ نگاہ جس کو سمجھنا یہاں کے سیاستدانوں کو اور یہاں کے پالیٹکس کو سمجھنے والوں کو اور یہاں کے جو بھی برادر سیاست کرنے والے جو بھی ہیں ان کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے. 1973 میں جب نیب گورنمنٹ نے 31 اگست 1973 کو ایک فیصلہ کیا کہ بلوچستان میں مادری زبانوں کو تعلیمی زبان قرار دیا جائے, اس میں تعمیر نو اسکول کوئٹہ میں میر گل خان نصیر مینگل صاحب نے ایک جو اس وقت وزیر تعلیم بھی تھے, سینئر منسٹر بھی تھے اور منسٹر انفارمیشن تھے, انہوں نے ایک اعلان کیا وہاں کہ آج کے بعد بلوچستان میں پرائمری سے لے کر میٹرک تک بتدریج بلوچی اور پشتو زبان کو تعلیمی زبان قرار دیا جاتا ہے, جس کا ریئیکشن میں بلوچ اسٹوڈنٹس فیڈریشن کے ایک حلقہ جو بی ایس او کہلاتا ہے وہ باہر نکل کے آیا, کیونکہ بی ایس او کو ہیڈ کرنے والے تقریباً براوی بولنے والے ہی رہے ہیں اکثریت میں. تو انہوں نے اس بات پہ احتجاج کیا کہ جی براوی زبان, چونکہ ہم بی ایس او کے آئین میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ بلوچ قوم کی 3 زبانیں ہیں, براوی, بلوچی, پشتو, تو سرائکی تو لہٰذا براوی کو بھی دینا چاہیے. تو انہوں نے اس سے انکار کیا اس وقت کی قیادت نے, اور بدقسمتی سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم براوی کو اس کا مقام دیں گے تو پھر بلوچ قوم تقسیم ہو جائے گا. یہ تقسیم کا جو لفظ ہے اس کے پیچھے ان کے سیاسی اپنا ایک نقطہ نگاہ ہے یا حکمت عملی ہے, جس کے بنیاد پہ ہمیشہ براوی کو زیر بار کیا جا رہا ہے اور کیا گیا ہے اس سے پہلے بھی. تو اس زمانے کے لڑکے احتجاج میں آئے جس میں اسلم کرد اور اپنا ڈاکٹر صلاح الدین مینگل صاحب والے اور
डॉक्टर अब्दुर्रहमान नजम बिरावी सोराब के थे, और लाल मोहम्मद लहड़ी, इकबाल रेसाड़ी, इस तरह के बहुत सारे साथी थे जो बीओसो से उस ज़माने से इस बुनियाद पे एहतजाज किया, और फिर उनकी बात नहीं मानी गई तो उन्होंने फिर बिरावी स्टूडेंट्स फेडरेशन कायम किया। और उस फेडरेशन में उन्होंने बिरावी को बहैसियत कौम, उनका जिक्र नहीं है, वो वही बीओसो का आइन को उठाकर उन्होंने रखा कि जी बलोच कौम की 3 ज़ुबानें, लिहाजा बिरावी से नाइंसाफ़ी की गई है, लिहाजा हम इन बीओसो से इससे अलग हो जाते हैं। हम तो ये देखते पस हैं मंज़र कि था। जैसे कि बीएसओ बना और कॉलेज में और यूनिवर्सिटी में ज़्यादातर तादाद बीएसओ वालों की रही, और बिरावी बोलने वाले भी बीएसओ के मेंबर और उहदेदार रहे, लेकिन बीएसएफ को पजीराई नहीं मिली। वजूहत क्या है इसकी? जी, मैं उस बीएसएफ की बात करूंगा तो वो तकरीबन 6 महीने तक रहा। 6 महीने के बाद नैब गवर्नमेंट ख़त्म हो गई, 6-8 महीने के बाद तो फिर वो बीएसएफ ख़त्म हो गया। उसके बाद फिर एक सिलसिला आया कि हमने बिरावी स्टूडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन था जी, उसकी बुनियाद रखा, जिसके सिंध और बलूचिस्तान में उसके यूनिट्स भी कायम हुए। फिर उसके बाद फिर वाक़यात ऐसे हुए कि बलोच स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन सिंध में काम करने लगा, जीए सिंध के साथ मिलकर उस ज़माने में, और उनका ये था कि भाई सिब्बी तक या लसबेले तक जीए सिंध को दिया जाएगा रास्ता स्टूडेंट्स फेडरेशन को, ताकि वहाँ पे वो काम कर सकें। उनका एक मुआहदा था बहरहाल। तो उसके बाद फिर यकीनी तौर पर हमें जो उन्होंने तकलीफ़ें दी बिरावी स्टूडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के दोस्तों को, उस ज़माने के बीओसो ने, कौन कौन थे उस वक्त? उस ज़माने में जो हेड कर रहा था वो अबीब जालिब मरहूम उस वक्त चेयरमैन थे, उस ज़माने की बात कर रहा हूँ मैं। बीएनपी के अबीब जालिब शहीद, अबीब जालिब शहीद जी, वो थे उस ज़माने में। तो हमारे सिंध यूनिवर्सिटी से एक दोस्त को बाकायदा उठाया गया इस मसले के हवाले से। तो बहरहाल वो एक अलग सिलसिला था। रही जहाँ तक पजीराई की बात, मैं समझता हूँ कि बिरावी स्टूडेंट्स फेडरेशन को जो पजीराई बलूचिस्तान में मिली और सिंध में, और उसके तो बड़े पैमाने पे चाकिंग भी होते रहे हैं, और हम तो एक तो बाकायदा एक चाकिंग करते थे कि बिरावी बलोच इत्तिहाद लाजवाब बेमिसाल, मगर हमारे बीओसो वाले साथी उस पर काली स्याही पैर के चले जाते थे। अब पता नहीं उनको क्या मसला है बिरावी से, ये बात आज तक मेरे समझ में नहीं आई है। और कि यकीन है जब हम बिरादर कौमें कहलाती हैं आपस में, तो हमें एक ताउन और इत्तिहाद के साथ रहना चाहिए था, मगर उनका शायद कोई और एजेंडा है, इसीलिए वो बिरावी को नहीं करते हैं। मगर बिरावी स्टूडेंट फेडरेशन मौजूद है और मुसलसल अपना काम कर रहा है, और हम काम को, हमारा काम का नौइयत शायद उस तरह नहीं है जिस तरह आम जो स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स शोर गौगा वाले सिलसिले में चलते हैं। हमारा पॉलिटिक्स एक मोतबराना और एक लिखा पढ़ा विजन के साथ हम कर रहे हैं। इरशाद साहब, हम ये देख रहे हैं कि जो बलोच कौम परस्त सियासत है, सब बलोच ज़ुबान, बलूची ज़ुबान और बलोच कौम परस्त सियासत बिरावी के हवाले से वो काम नहीं, यानी बिरावी के नाम की कोई सियासी पार्टी नहीं है। जी बिल्कुल, बिरावी के नाम से एक सियासी पार्टी होनी चाहिए। मेरे ख्याल में बलोच के नाम से भी कोई सियासी पार्टी नहीं है, और अगर है तो वो बलूचिस्तान के नाम से है, और बलूचिस्तान के नाम से तो लेकिन वो तो कुल्लम कुल्ला कहते हैं कि हम बलोच की सियासत कर रहे हैं, बिरावी का नाम नहीं है। हाँ, वो यही तो सबसे बुनियादी इख्तिलाफी बात यहाँ से शुरू हो जाता है कि सबसे ज़्यादा इस तहरीक में जो ईंधन बन रहे हैं वो बिरावीज़ हैं बलूची तहरीक में, और जो सबसे ज़्यादा काम करने वाले हैं वो बिरावीज़ हैं। बदकिस्मती से बिरावी को साइकोलॉजिकली और जिस तरह के हिस्टोरियंस हैं इनके जिस तरह पेश कर रहे हैं, और नौजवान नस्ल को जिस तरह वो बिरावी से बरगश्ता कर रहे हैं, वो एक सोचने का मकाम है। और मेरे ख्याल में ये मुस्तकबिल में शायद ये चीज़ें उस तरह न हों जिस तरह ये किया जा रहा है, और इसके नुकसान दोनों को होंगे, यकीनी बात है। क्या बिरावी को बिरावी बोलने वाले ही नापसंद कर रहे हैं, बलूच सियासत की वो ज़्यादा पजीराई कर रहे हैं? यकीनन इसमें हम इन चीज़ों को 2 हिस्सों में बांटते हैं। एक तो वो है बिरावी एक हकीकत है सरजमीन की, अगर आप ग्राउंड में जाएंगे तो बिरावी अपने आप को बिरावी कहलाता है, मगर जब सियासी ग्राउंड पे आते हैं तो फिर वो उसको बलोच का नाम दिया जाता है। पहली बात ये है,
समझने की जो चीज़ है। और दूसरा बात यह है कि बिरावी की पजीराई खुद बिरावी कर रहे हैं, नौजवान जो हैं, जो राइटर्स हैं, नौजवान हैं। दूसरा एक तबका है जिसके सियासी मफादात हैं, चाहे वो फिर ब्यूरोक्रेसी में हो, चाहे फिर वो कॉलेजेस में हो, चाहे वो यूनिवर्सिटीज़ में हो, फिर उनका चूंकि एक सियासी नुक्ता निगाह रखते हैं या उनको सियासी सपोर्ट चाहिए होता है इन इदारों में रहने के लिए, तो फिर वो यहाँ की पॉलिटिक्स जो चल रहा है वो बलोच पॉलिटिक्स चल रहा है, तो उस बुनियाद में वो अपने आप को उसमें एक तहफ़्फ़ुज़ महसूस करते हैं और उसी की साइड पे वो जाते हैं। मगर वो है तो बिरावीज़ हैं, उनको बिरावी पॉलिटिक्स क्यों नाकाम हुई? मेरे ख्याल में बिरावी पॉलिटिक्स कामयाब है और नाकाम नहीं हुई है। लोग इसको समझते हैं शायद ये नाकाम है। हमारा तरीक़ेकार काम करने का बड़ा पोलाइट वे पे और हम चीज़ों को देख कर चलते हैं, हमारा मेरे ख्याल में ऐसी कोई बात नहीं है। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो रियासत कल्लात है उसके जो हुक्मरान रहे हैं वो सारे बिरावी रहे हैं जी। यहाँ के जो सियासी लीडरान रहे हैं अक्सर उनकी बिरावी रही है। जो शोदाए बलूचिस्तान है, नवाब नौरोज़ खान और उसके बेटे, वो सारे बिरावी है। उसके बावजूद उनको बिरावी नहीं कहा जाता। जहाँ भी सियासी हवाले से बात होती है वो बलोच शोदा कहलाते हैं या बलोच हुक्मरान कहलाते हैं, जिसका एक तारीख़ी सियासी पस मंज़र है। वो ये है कि जब अंग्रेज़ यहाँ पे आए और अंग्रेज़ विजनरी जो था वो यहाँ के सियासी लोगों से कुछ ज़्यादा ही बालिग़ नज़र था और हर चीज़ को वो तहक़ीक़ी नुक्ता निगाह से देखते थे। चूँकि यहाँ के हाकिमीन बिरावीज़ थे तो उनके मद्दे मुकाबिल ये डेराजात का जो बलोच फैक्टर है उसको उन्होंने अहमियत दी। आप देखते हैं कि अंग्रेज़ों ने बिरावी कौम के तारीख़ पे काम नहीं किया है, बिरावी ज़ुबान पे काम ज़रूर किया है उन्होंने। जब आप किसी कौम की तारीख़ पे काम करते हैं तो आप इसका मतलब ये है कि आप उसको कौमी तौर पर एक उभारते हैं और उसको एक मनता देते हैं। तो उन्होंने बिरावी को बहैसियत कौमी तारीख़ पे काम नहीं किया। अब जिस तरह देखें राय बहादुर ओतुराम है, उनको बाकायदा नोटिफिकेशंस मिले और उन्होंने तारीख़ी बलूचिस्तान लिखा और बलूची नुक्ता निगाह से लिखा। अगर जब वो कहा जाता है कि जी उसने बिरावी को बाय फॉरगेट किया, हालांकि ये बात नहीं है। दूसरी बात ये कि जिस तरह हम देखते हैं कि वो बलूची कबाइल पे उन्होंने काम किया, मगर बिरावी पे तारीख़ी सतह पे काम नहीं किया उन्होंने। तो इसके पीछे वो आज भी वही कुव्वतें हैं जो बिरावी को मैं समझता हूँ कि नीचे लाने के लिए, और वो चूँकि ये समझते हैं कि ये एक तरह से इक़्तिदार इनका रहा है और बलूचिस्तान जिसको आज कहा जाता है, ये अगर 1973 के आइन में नहीं दिया जाता तो शायद ये सूबे का नाम रियासत कलात ही होता या कलात सूबा कहलाता। मैं समझता हूँ कि ये तारीख़ी तौर पर इन चीज़ों को समझना चाहिए और तारीख़ी तौर पर बिरावी के साथ बहुत सारे नाइंसाफ़ियाँ हुई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अली अहमद शाह साहब, आप आए और आपने हमारे प्रोग्राम में शिरकत की। नाज़रीन, आपने डॉक्टर अली अहमद शाह साहब की बातें सुनी जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स के हवाले से, बलूचिस्तान के हवाले से और बिरावी और बलूच के हवाले से उन्होंने जो बातें की। इस हवाले से बलूचिस्तान की सियासी पस मंज़र के हवाले से आपको काफ़ी मालूमात हासिल होंगी। अगले प्रोग्राम तक कई बेदार को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।